Hello, good evening. You're watching DD News and I'm Gautam Roy. Well, Candid Conversation tonight is all about the contentious issue of triple talaq and those that surround it, because the centre recently filed its affidavit in the Supreme Court where a slew of petitions are being heard against the practice, which basically means that divorces can be granted by simply uttering three words, that is talaq, talaq, talaq. And it's happened over the phone in the past, through online chatting, even through a text message, and the centre has clearly said that this is not something that can be abided by. It's in contravention to the provisions of the Constitution that guarantee equal rights and a right to live with dignity. Women are exploited because of it. And to explain the centre's stand, we have Minister of State for Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi with us tonight. Welcome to the show. Naqvi ji, you know, your job is to ensure the welfare of minorities. Now, a lot of people in the community, the Muslim community, are feeling that the centre is doing this and it's contrary to their interest, and that is that making your job difficult, or do you feel that this is a wrong thing to say and think? And first thing is, we are the democratic country. Yes. We are the open country, as well as we are the secular country. And on the issue of the triple talaq, the completely academic discussion, debate is going on. As far as the Law Commission's questionnaire is concerned, it's a completely Rai Shumari. This questionnaire is given to the different section of the society, the individuals, religious, social, educational, different organizations. And triple talaq is just one part of it. It's about Uniform Civil Code, which is a wider issue. Presently, the issue is triple talaq. Ji. As far as the Common Civil Code is concerned, it's not a Skylab कि ऊपर से किसी ने भेजा और यहाँ पर आके गिर गया. If we think about, if government think about the Common Civil Code, then we discuss and we try to make consensus in a different section, and especially the section who is opposing the Common Civil Code. But as of now, there is no discussion, there is no debate at a government level on the Common Civil Code is concerned. As far as the triple talaq is, if you see, large number of the Islamic countries are banned this provision of the triple talaq. I have got detail in Pakistan in 1961 banned the triple talaq. Bangladesh in 1961 it banned the triple talaq. Afghanistan banned the Morocco in 2004 banned the triple talaq. Tunisia in 1956 banned the triple talaq. So we're decades behind these Egypt countries. banned, Iraq, Iran banned, Indonesia banned, and these are the Islamic countries. Islamic countries is banned the triple talaq. Then what is the? I don't think the people's given this argument that we can't discuss the issue of the triple talaq is not, I think, logical. Would you say it's undemocratic? No, I'm not saying undemocratic, but not logical. Okay. If you want to oppose, if you want to give some logic on this issue, then you can give all the ulmas, all the Islamic scholars. Some people are opposing, some people are supporting. I am happy the academic and the fruitful and the positive debate is going on. We'll talk about that logic as well, the arguments that they're giving in favor of triple talaq. Some people found them completely laughable and outrageous. But in the Indian context, do you feel there is enough factual basis through decades to show that triple talaq is indeed a pernicious practice, that women suffered because of it? Not just women, families. If you see, it's our government, at present the NDA government. But presume, if we are was not in government, I is not in government, if anybody like Congress and any other party is in government at center, they work within the framework of the constitution. बिना constitution के दायरे के बिना कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती. और constitution में बराबरी के हक की बात की गई है, सुरक्षा की बात की गई है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई है, उसको देखना पड़ेगा एक चीज. और वो सरकार की जिम्मेदारी, और वो सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है. कोई भी सरकार हो, हम होंगे, कोई और होगा, उसको जो है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम करना पड़ेगा. और हमारी रिस्पांसिबिलिटी, अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया
उस सुप्रीम कोर्ट के केस में हमें एफिडेविट देना है, हम जो है वो एफिडेविट शरीयत के हिसाब से नहीं दे सकते, हम वो एफिडेविट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उलेमा, जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, मैंने उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट की कि आप उसको, जो भी आप लॉजिक हो, उसकी तर्क हो, उसके तथ्य हो, उसके आधार पर आप जो है वो बात करिए। लॉ कमीशन ने क्वेश्चनर्स भेजे हैं आपको, आपके पास हैं, आप उसका जवाब दीजिए। Let's look at the logic that they're trying to forward. They're saying that women are better off with triple talaq in the Muslim community than without it, because if you don't have triple talaq, they'll get murdered. Why the Islamic What sort of countries? logic Why is that? the Islamic countries like Pakistan? Why the Islamic countries like Iran? Why the Islamic countries like Indonesia? Why the Islamic countries And they like say Bangladesh? Islamic law is ban- better because women have been given the right to have talaq as well. Our constitution given They can have the khula. guarantee for the right of the every section of the society, including the women's. But I think there is some misperception. There is the perception, both we can say, that because of this triple talaq Riti Rawaj, because one thing is very clear, triple talaq is not a part of the religion. ये कोई धर्म का जो है वो हिस्सा नहीं है, बल्कि ये रीति रिवाजों का हिस्सा है। और रीति रिवाज के हिस्से को लेकर के हमेशा जो है रिफॉर्म होते रहे हैं, सुधार होते रहे हैं। और मैंने जैसा किया कि डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज ने इस पर रिफॉर्म किए हैं। इसको जो है वो इसके साथ एकदम कॉमन सिविल कोड जोड़ दिया जाता है। भाई कॉमन सिविल कोड जब भी उसमें, हम इस देश में पहली बार तो डिबेट नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई, उस पे जो है वो तमाम तरह के, और उसमें तमाम तरह के लोग थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके समर्थक थे कि भाई कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। तो ये एक लंबी बहस है। उस लंबी बहस में हमें लगता है कि अभी जो स्पेसिफिक इशू है वो सुप्रीम कोर्ट के का है। उस स्पेसिफिक इशू के आधार पर हमें जो है वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, दे आर सेइंग दैट they're opposing this triple talaq affidavit that the government has filed. They're also saying that we will now carry out a campaign to show why triple talaq is better and that women have better rights under Islam. One thing, as far as the Muslim Personal Law Board is concerned, the ulamas is concerned, they are very qabil peoples. They are very I think human peoples. On the humanitarian ground they are thinking, Okay. but on the logical ground they are not talking. अगर आप जो है वो लॉजिकली इसको देखेंगे तो ये जो उलमा हैं, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, इसमें दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ट्रिपल तलाक होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रिपल तलाक पे बैन होना चाहिए। तीसरी चीज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ लॉजिक दे रही है, Muslim personal law giving the logic that triple talaq is not the issue. Issue is the common civil code, and the triple talaq is the beginning of the common civil on the way of the common civil code. That is why we are stopping. But don't you think this is a way of throwing the baby out with the bathwater, that we won't have uniform civil code and of course we will then also not have triple talaq being banned? देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि जो ट्रिपल तलाक का इशू है और जो कॉमन सिविल कोड का है, दोनों जो है कि अभी देखिए गवर्नमेंट इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। द इशू इज द लॉ कमीशन गिवन ए क्वेश्चनर फॉर द रायशुमारी, and after the receiving the different opinion from the different section of the society, law commission will give the detailed report to the government, and after that government will discuss about the Rai Shumari and about the different sections opinion about the triple talaq and all other issues. Then government will come in the picture. Now government is not in the picture. ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो यूसीसी है वो लॉ कमीशन कर रही है, सरकार की राय मांगी गई थी ट्रिपल तलाक के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए सरकार ने अपनी राय दी। Absolutely right. Then how do you respond to people like say Tipu Sultan Mosque Shahi Imam Sayyid Muhammad Nurur Rahman Barkati,
जो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हैं, उनको धमकी देने की अगर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ तो आपकी सरकार खत्म हो जाएगी, आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये किस तरह का जवाब इट्स अ बैड टेस्ट, इट्स इन बैड टेस्ट। हमें लगता है कि जो उलमा है उनको अपनी ठीक है मजहब की बात और सीधा राजनीति से जोड़ा जा रहा है और इसको सियासत के साथ जोड़ने से उनका कोई वो जो बात कहना चाहते हैं उस पे वो भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है वो खत्म हो रही है। ओके, आप प्रधानमंत्री को आप अटैक करेंगे, आप सरकार को अटैक करेंगे, आपको हक है, आपकी डेमोक्रेसी में आप रह रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। एंड पीपल लाइक असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कह रहे हैं कि आप देखिएगा पंजाब में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, जहां चुनाव होने वाले हैं। वो तो फिर अब सभी को दिख जाएगा क्या होगा, उसमें तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। आपको जिनको लगता है कि वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो वो कुछ लोगों का जो इस तरह का बयान आ रहा है वो ऐसा लगता है किसी सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह बोल रहे हैं, किसी उलमा या किसी मजहबी लीडर की तरह नहीं बोल रहे हैं। वो थोड़ा सा मुझे कभी कभी दुख होता है क्योंकि मैं उन सबकी इज्जत करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो अपनी डिबेट में हिस्सेदार बने, भागीदार बने, अपने तर्क दे, तथ्य दें। मैं नहीं कहता कि उनके वो इसको सपोर्ट ही करें। Okay, so clearly the politics of this issue is completely avoidable. We'll talk about this further because there's a lot more to talk about triple talaq and of course all the issues that surround it. We're taking a very short break at this point. Stay with Candid Conversation. छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा, खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। वायर खरीदना है बड़ा कंफ्यूजिंग, सेफ्टी चुनूं या करूं सेविंग। अरे सर जी दोनों मिलेंगे, काय को माथा फोड़िंग। चूज आर का बेल टू दी अकलमंद थिंग, चूज आर का बेल टू दी अकलमंद थिंग, चूज आर का बेल टू दी अकलमंद थिंग। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला क्या है सर, ये साइड से। नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। Welcome back. You're watching Candid Conversation. We're in conversation with Mukhtar Abbas Naqvi, Minister of State for Minority Affairs in the central government. We're talking about the issue of triple talaq and all that surrounds it. You've established, Naqvi Saab, that it's a reprehensible practice that needs to go. That's what the government has told the Supreme Court. Just tell me one thing. If it is so reprehensible and established through decades that it is, why has it taken so long for a government like yours to file this sort of an affidavit in the Supreme Court? Why didn't a previous government do it? There have been NDA governments in the past. There have been non-Congress governments. Congress is accused of being, well, तुष्टीकरण की बात कही जाती है। Peoples know better than us, or better than we. The previous government, why not given a reply in Supreme Court, and why not taken this stand? Everybody knows. जहाँ तक सवाल है
आपको अच्छी तरह याद होगा कि कॉमन सिविल कोड पे एक बार राजीव गांधी जी ने एक स्टैंड लिया था। स्टैंड लेने के बाद जो है उन्होंने बहुत उस पर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव अपना एटीट्यूड देश के सामने रखा था। उसके बाद जो है वो शोर मचा, हंगामा हुआ उसको लेकर के, और उसके बाद वो पार्लियामेंट के अंदर उन्हें जो है वो अपने डिसीजन को जो है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो है वो नलिफाइड करने के लिए पार्लियामेंट में कानून बनाना पड़ा। हमें लगता है कि हमें जो है वो समाज को तैयार करना पड़ेगा। पहली बात तो एक बात But can you say that your government will not backtrack now on this issue? देखिए अभी तो गवर्नमेंट के पास तो कुछ आया नहीं है, गवर्नमेंट अभी पिक्चर में नहीं है। जब रायशुमारी लॉ कमीशन कर लेगा, हाँ, वो तो सिविल कोड के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड ट्रिपल तलाक बोथ, अच्छा दोनों, हाँ, तो इस पे जब रायशुमारी कर लेगा और रायशुमारी करने के बाद गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन देगा, अपनी रिपोर्ट देगा, तो देन गवर्नमेंट उसमें पिक्चर में आएगी। और पिक्चर में आएगी तो हम कोई लॉ कमीशन ने जो रायशुमारी की है, हम उसको जो है कोई उसके बाद फैसला करके कोई स्काई लैब की तरह हम उसको उस डिसीजन को अपने नीचे नहीं गिराएंगे। उसके बाद भी हम सहमति के आधार पर लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, एक नेशनल डिबेट होगी, एक डिस्कशन होगा। और डिबेट और डिस्कशन जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, किसी भी ओपन कंट्री के लिए जो है सबसे हेल्दी। तो आप कह रहे हैं कि इफ देयर इज कंसेंसस ओनली देन will triple talaq go and there will be uniform civil code, or as far as the triple talaq is concerned, government stand is very clear. We are committed toward the constitution, and constitution given a guarantee. So there is no room for consensus there. Triple talaq has to go. Triple talaq में uniform civil code, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम बात करेंगे, बातचीत करने पे सहमति बनाएंगे। अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, अगर जरूरत भी हुई आई तो भी हम सहमति के आधार पर उस पर आगे बढ़ेंगे। और सहमति अगर नहीं हुई, कंसेंसस इफ इट्स नॉट देयर देन नहीं, डेमोक्रेसी में ये कैसे हम कह सकते हैं कंसेंसस नहीं बनेगी या नहीं बनी तो क्या फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारी पार्टी डेमोक्रेसी पे विश्वास करती है, हमारी सरकार डेमोक्रेसी पे विश्वास करती है और कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करती है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके तहत हम काम करेंगे। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कुछ टाइमिंग की गड़बड़ी हो गई, because you know the day the affidavit was filed in the Supreme Court, the Law Commission came up with its consultation process. It issued that questionnaire. So some people have said that this could have been avoided. You know, first get triple talaq through, you know, ban it, and then go in for uniform civil code. If you search excuses, so then you will get lot of the excuse. But I don't think there is any conflict between the timing. लॉ कमीशन अपना काम पहले से कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जो एफिडेविट और जवाब सरकार को देना था, वो उस सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे, और जो जवाब होगा सरकार का वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। The other issue, of course, consensus you said on uniform civil code, but again, like it's being said about triple talaq, that maybe it would have been relevant at a certain time. It's no longer relevant now in this day and age. If time has come to have uniform civil code, why do you feel there is need for consensus there? हम मानते हैं कि देखिए हमारे देश में जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत ही मैच्योर्ड हैं। द पीपल मुस्लिम्स आर वेरी मैच्योर्ड इन आवर कंट्री, एंड जो दुनिया में चेंज हो रहा है, जो देश में चेंज हो रहा है, उससे उसके हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं। कुछ जो धार्मिक लीडर हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, या जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अपने विरोध हो रहे हैं, और विरोध वो कोई बहुत, मैं नहीं मानता कि कोई विरोध जो है ये बहुत परमानेंट विरोध हो गया है। उनको भी जो है वो उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, उनको जो है वो हमें अपनी बात समझानी पड़ेगी, उन्हें अपनी बात समझानी पड़ेगी। जब तक हम जो है वो संवाद का फोरम नहीं रखेंगे, संवाद का रास्ता नहीं रखेंगे, वो अपने घर पे और अपने ऑफिस में नो एंट्री का बोर्ड लगा दें, हम अपने घर अपने ऑफिस में नो एंट्री का बोर्ड लगा दें, नो टॉक नो एंट्री, तो वो जो है वो कभी भी किसी भी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी साइन नहीं है। बट एज फार एज ट्रिपल तलाक इज कंसर्न्ड, that will be decided by the Supreme Court. The Supreme Court Constitution bench will be there. It will go into the merits and demerits based on the arguments that have been made, and it will wait on the parameter of the Constitution. And do you feel that if the Supreme Court feels that triple talaq should no longer be there, there would be a need for penal provisions as well?
as far as the Supreme Court is concerned, matter is in Supreme Court. Because sati has been outlawed with penal I agree provisions, with you. untouchability is Matter is in outlawed with Supreme penal Court. provisions, dowry is outlawed with penal provisions. Why not triple talaq? I agree with you. But this issue is, this specific triple talaq issue is the issue before the Supreme Court. And let's wait for the decision of the Supreme Court. As far as the reforms is concerned, if you see after the taking a charge of the central government by the Shri Narendra Modi, several reforms taken place. If you see the economic reform, administrative reform, social reform, other reforms, and as well as these reforms exercise is also needed and need of the hours. We are trying, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस दिशा में, सुधार की दिशा में आगे बढ़ें. इस सुधार का मतलब कतई ये नहीं है कि किसी भी मजहब में दखलंदाजी है. बिल्कुल आप फ्री हैं, हर व्यक्ति फ्री है, अपने मजहबी जो उसूल हैं, मजहबी जो कामकाज है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी दखलंदाजी सरकार की तरफ से ना है, ना होगी और ना आगे भी कभी होगी. आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उस धार्मिक स्वतंत्रता की जो गारंटी संविधान ने दी है, उस संविधान की गारंटी की हम आपको गारंटी देते हैं कि वो रक्षा होगी और वो नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से उसके लिए कमिटेड है. Some people are saying, why not do a survey, find out in the community, in the Muslim community itself, how many people are in favor of triple talaq and how many oppose it. Do you feel that there is a need for a survey, that a decision like this should be based on कितने लोग चाहते हैं ये हो या कितने लोग चाहते हैं नहीं हो, अगर मेजॉरिटी चाहेगी तभी होगा? No, it's not a matter of the Muslim community. ये जो रायशुमारी हो रही है, ये रायशुमारी समाज के सभी वर्गों में हो रही है. उसमें जो है वो समाज के सभी हिस्से उसमें क्या चाहते हैं, किस तरह से रिफॉर्म होना चाहिए, उसके एक बहुत ब्रॉडर क्वेश्चनायर्स हैं. और वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक, ऑल दीस थिंग्स. तो उसमें मुझे लगता है कि बहस होनी चाहिए, एकेडमिक डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए. और हम ये देश हमेशा जो है वो इस तरह के एकेडमिक डिबेट और डिस्कशन के लिए समझा जाना गया है, पहचाना गया है. और लोग अपोज करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें जो है वो पॉलिटिकल प्रेजुडिस माइंडसेट के से बाहर निकल करके और उन्हें जो है वो लॉजिकल बातें करनी चाहिए. लॉजिकल बातें करेंगे तो हम उन्हें उसका उनकी बात भी लोग सुनेंगे, समझेंगे. और दूसरी चीज वो कहते हैं लॉ कमीशन का जो क्वेश्चन है उसको हम बाइकआउट करेंगे. क्यों करेंगे भाई आप? अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि आपको टाइम चाहिए, आपको लगता है कि आप उसमें जो है अभी आप तैयार नहीं है उसके जवाब देने के लिए, तो आप लॉ कमीशन को कहिए कि आप उसका टाइम और बढ़ा दीजिए. हम आपसे मिलेंगे, हम आपको जवाब देंगे, हम आपको डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें जो भी हमारे लॉजिक हैं उसको हम रखेंगे. Clearly, and opinion will be formed whether or not people have a voice in that or not. They want to boycott it, it's up to them, it will be their loss. But we'll talk about this further. We're taking a very short break in Candid Conversation here. Stay tuned to DD News. नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है. कंप्लेन तो करनी पड़ेगी. तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे. नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प. हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती. एटलीस्ट वी शुड ट्राई. आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है. यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स. उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है. अखिलेश जी जानते हैं कि युवा अपने पांव पर खड़ा होगा तभी प्रदेश विकसित होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए कम ब्याज पर लोन दिया गया है, जिसका 10% भार सरकार ने उठाया है. प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल. प्रकाश सूर्या GI पाइप्स चले सालों साल. GST की बात GST भारती के साथ. नमस्कार,
मैं हूँ जीएसटी भारती और आज मैं आपको बताऊंगी जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। सुना है इससे टैक्स पे टैक्स लगना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, केंद्र और राज्य की कई टैक्सों की जगह अब सिर्फ लगेगा जीएसटी, जिससे होगा वन टैक्स वन मार्केट का सपना साकार। पर इससे व्यापारियों को क्या लाभ? अब सिर्फ एक टैक्स रजिस्ट्रेशन, एक रिटर्न और एक ही भुगतान, तो हुई ना समय और धन की बचत। और हाँ, जीएसटी से देश में कहीं भी व्यापार करना होगा आसान। और आम जनता का क्या? इससे देश की अर्थव्यवस्था में होगा सुधार, आएंगे नए निवेश और बढ़ेगा रोजगार। जीएसटी होगा टैक्स सिस्टम में सुधार और बढ़ेगी विकास की रफ्तार। Welcome back. You're with Candid Conversation. We're speaking with Minister of State for Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi about triple talaq and all the issues that surround it. Naqvi ji, one other dalil that is being given is that triple talaq is not codified law. कहीं लिखा नहीं हुआ है कानून की तरह, तो इसको गैर कानूनी कैसे करार दिया जा सकता है? देखिए, पहली बात ये कि ये अपने आप में ये जो आर्गुमेंट जो लोग कर रहे हैं वो खुद उनका जो है itself is a contradictory argument। हाँ। अगर जो है वो कहीं पर कुरान शरीफ में नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर जो है इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो फिर उसको जारी रखने के लिए वो क्यों झगड़ा कर रहे हैं फिर? तो ये एक मुझे लगता है कि अपने आप में कंट्राडिक्टरी आर्गुमेंट है और इस आर्गुमेंट का किसी तरह से भी फायदा नहीं किसी को होगा। हमारा मानना है कि हमारे सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, तो अभी भैया बहुत से इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, रिलीजन जो एम्पावरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। इन इश्यूज को फिर से एक बार अगर आप इस तरह का विरोध करेंगे तो वो पीछे हो जाएंगे। Naturally, I mean, all these changes need to happen through society. Of course, they can be outlawed. Absolutely. But we've seen child marriage is outlawed, it still happens. We've seen so many other practices, untouchability, numerous cases happening every year in all parts of the country, literally. So this will not go away with just a ban. देखिए, इस देश में ऐसा तो नहीं, सती प्रथा खत्म हुई, सती प्रथा को खत्म करने के खिलाफ भी बहुत से लोग थे। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से उसमें यूनानिमिटी बन गई कि साहब बिल्कुल खत्म कर दो। बहुत से लोग थे कि नहीं साहब ये तो हमारी रीति है, रिवाज है, इसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदू कोड बिल में बहुत से परिवर्तन हुए, बहुत से बदलाव हुए, खुद जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और उसके बाद भी कई बार बदलाव हुए। उसके अलावा समय समय पर वक्त के साथ वाजपेयी जी की सरकार ने ईसाइयों के उसमें हुए कई बार बदलाव हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, उसमें आवाजें भी उठी हैं, लेकिन वो आवाजें दबाई नहीं गई हैं। उन आवाजों के तर्क के आधार पर और जो भी तर्क उनके रहे उन तर्कों के आधार पर चर्चा हुई, चर्चा के बाद जो है वो आम सहमति बनाई गई। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ट्रिपल तलाक पे फैसला होता है, it won't happen overnight, it will take maybe months, even years, because the Supreme Court constitutional bench will go into all merits and demerits and evaluate everything. It takes time, there is a process. Some people are saying, why doesn't the government do it? The winter session of parliament is coming, why don't you bring a legislation? Government is not going to bring any legislation on the triple talaq or immediately on the common civil code. It's not a skylab कि गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने आकर के इसको लोगों के ऊपर सर पे गिरा दिया। हम इस पक्ष में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, इसमें एकेडमिक डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए, समाज के सभी वर्गों की इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो एक तरफ चले। उसके अलावा जो लोगों के रियल इश्यूज हैं, उन रियल इश्यूज पर ये इशू डोमिनेट ना करे, इसकी भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो धार्मिक नेता हैं या जो धार्मिक लोग हैं वो अगर इस इशू को ही समाज का इशू बना देंगे तो नेचुरली जो है वो रियल इश्यूज जो है फिर पीछे हो जाएंगे और ये जो पिछले 7 दशकों में चल रहा था वही होता रहेगा। अभी होता क्या था कि जब जो मुस्लिम्स के इशू को क्या माना जाता था कि यही सब इशू मुस्लिम्स के हैं, मुस्लिम्स के रोजगार के इशू है, एजुकेशन के इशू है, एम्पावरमेंट के इश्यूज हैं, वो पूरी तरह से पीछे हो जाते थे। और जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी इसी तरह के इश्यूज सूट करते हैं कि साहब मुस्लिम इसी में फंसा रहे। और आप इन इश्यूज पे ज्यादा फोकस हमारा इशू है जो रियल इश्यूज हैं, सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल जो एम्पावरमेंट की इश्यूज हैं, वो इश्यूज जो है हमारे लिए आज भी रियल इश्यूज हैं। हम ये क्लियर कह रहे हैं कि मजहबी आज़ादी और मजहब की सुरक्षा हमारी सरकार आपको पूरी तरह से संविधान ने दी है और उस संविधान के दायरे में हम बंधे हुए, वो भी कहीं किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। I would like to thank you on that note. That's a great thing you said that. Don't forget the issues that matter and let's move on for the moment.